call is now being recorded. Okay, so what is an EV bill? When is it required to be generated? How is it to be generated? Who is required to generate an EV bill? Consolidated EV bills, validity, and the documentation that is required, blocking, unblocking, and bill to ship to transactions, bill from ship from transactions, and other relevant points. And also, what happens at the time of interception. So, starting with my first slide, what is EV bill? So, Anshul, next slide, please. Yeah. So, हम सबको पता है E-way bill is required to be generated for movement of goods जहाँ पे goods की value is more than 50,000. Okay, so suppose for example अगर मैं जयपुर से लेकर आगरा तक if I have to move goods for maybe reason of supply, other than supply or inward, we'll come to that later on. But pehle ki the movement requires an EV bill to be generated, but that EV bill has to be before the commencement of movement of goods. That is, wo goods move hone ke pehle mujhe wo EV bill banana hai. All right. So this comes with the value. Now, reasons, the situations where I'm required to make an EV bill, it can be for supply, reasons other than supply, and inward. So starting with supply is simply your sales. That is, आपने कोई भी माल बेचा है and उसकी value 50,000 से ज़्यादा है and that goods require movement. So before the movement begins, आपको एक E-way bill बनाने की जरूरत है, right? Then comes other than supply. There are so many examples for other than supply, like job work, so and branch transfers and exhibitions, fairs. So in all these cases, this is not your supply. मतलब आपने माल बेचा नहीं है, सिर्फ आपको अपने let's say place of business से वो माल move करना है to some other place. So in this case, this is not your supply. आपको for example in case of job work, आपको from principal, you being the principal, आपको वो job worker के यहाँ पे भेजना है. So the movement is required, and for that this is a case of other than supply. मतलब आपको ये movement करना है with a delivery चालान. So I hope the difference between supply and other than supply is clear. So another example for another other than supply would be a branch transfer. For example, taking example of Rajasthan. So my one office is in Jaipur and the other is in Jodhpur. Let's say Jodhpur. So Jaipur से Jodhpur ले जाने के लिए the movement के लिए मुझे EV bill required होगा where the value is more than 50,000. So this is a case of another case of other than supply. Also fairs and exhibitions. अगर कभी भी आपको अपना माल move करना है to display them in any kind of exhibition or fairs, so जब तक आप display तक लेके जाते हैं तब तक आपकी sale नहीं है. So in that case also it's an example of other than supply. Okay, then coming on to the third scenario, that is inward supply from an unregistered person. So अगर आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लिया है और गुड्स whatever जिसकी वैल्यू इज मोर देन 50,000 and it is from an unregistered person, then you become the responsible person for creating an E-way bill. So every inward supply from an unregistered person, you become the liable person to generate an E-way bill. And to be very clear, I'm emphasizing on this again that the E-way bill is required to be generated before commencement of movement of goods. That is, goods निकालने से पहले हमको E-way bill बनाने का जरूरत है. Next slide, please. Anshul, next slide. Okay, so there are two very clear exemptions. A slide previous to this.
where there are exceptions. Yeah. So there are very two clear exceptions to the value of 50,000. मतलब कि मुझे कुछ केसेस में, कुछ नहीं, इन दो केसेस में ईवे बिल बनाने की जरूरत है even when the value of my goods is less than 50,000. Okay. And the one example for it is कि अगर मेरा interstate, that is from one state to another, अगर मेरा principal to job worker movement हो रहा है, तो in that case अगर मेरी value of goods 10,000 भी है तो भी मैं ई-वे बिल बनाऊंगी, मतलब that is mandatory. Alright. So example for this would be suppose मुझे राजस्थान से यूपी गुड्स मूव करने हैं एंड दे आर माई रॉ मटेरियल्स. मुझे वो गुड्स मूव करने हैं ताकि उनपे मतलब जॉब वर्कर को भेजना है ताकि जॉब वर्कर उनपे काम कर सके. नाउ फ्रॉम राजस्थान टू यूपी मुझे ई-वे बिल बनाने की जरूरत है even when मेरे उन माल की वैल्यू इज लेस देन 50,000, बी 20,000, 25,000, 5,000, does not matter, ई-वे बिल बनेगा ही बनेगा. Then the second case is, this one is a rare case where there is interstate movement, again from one state to another, of handicraft goods. So in that case also e-way bill is required irrespective of the value of the consignment. So जो ये बार बार मैं value of the consignment 50,000 की बात कर रही हूँ, how do we identify it? So that is section 15 जो मेरे को ये बोलता है कि value of the supply value would be जो invoice में लिखा हुआ है और bill of supply में और delivery चालान में. So this value includes my CGST, SGST or UGST or IGST amount, but it excludes my exempt supply. So for example, अगर कोई एक ऐसा invoice है जिसमें there is taxable value and there is exempt value also, so in that case I am going to exclude the value of my exempt supply and then take only the taxable supply and consider कि अब इसमें ई-वे बिल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए. Next slide, Anshul. Okay, so this is what my e-way bill looks like. There are two parts, part A and part B. So part A majorly cover करता है details of my consignor, consignee and the document जिसके against ये movement हो रहा है and HSN and basically details of the goods. And part B consider करता है details of the transporter. So in this हम लोगों को the part A is usually made by the supplier and part B the details are filled by the transporter. I think most of you are practically doing this, so you must be knowing ki how this works, right? Now the validity comes. अगर मैंने details in the part A I have filled, so my e-way bill is valid for 15 days till the time I fill details in the part B. But अगर मैंने एक बार पार्ट बी में डिटेल्स भर दिया है, then my validity changes, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. Okay, who is required to generate e-way bill? So every registered person who is causing the movement of goods, that is जो person वो movement करा रहा है, that person is required to make an e-way bill. A lot of you must be having a little confusions with this. So there are two scenarios. One, वो जो registered person है वो खुद के vehicle से वो good move करा रहा है, and the other is he's doing it through a transporter. So where he's doing it through his own vehicle, so the consignment का value has to be more than 50,000, then he is required to make the e-way bill. And if it is less than 50,000, then obviously there is no need to generate an e-way bill. Whereas where it is on the part of the transporter, as in it is through the transporter, जहाँ पे वो किसी transporter के through अपना movement करा रहा है, then the consignment value, if it is less than 50,000, तो हमें जरूरत नहीं है e-way bill बनाने की. Keeping in mind all the exceptions, those two exceptions जहाँ पे interstate movement हो रहा था, like for job worker, and
where the value is more than 50,000, the e-way bill is required to be generated. So in this case, where the e-way bill is where the vehicle is his own, as in जिसका जो movement करा रहा है उसी का vehicle है, then both the details of in the part A and the part B, ये दोनों ही somebody is writing the question, sir, we'll take the questions later. Okay, so ये दोनों ही details the registered person would fill. जहाँ पे ट्रांसपोर्टर के थ्रू हो रहा है वहां पे पार्ट ए की डिटेल्स तो रजिस्टर्ड पर्सन फिल करेगा, एंड पार्ट बी का डिटेल्स, दैट इज डिटेल्स रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टर, वुड बी फिल्ड बाय द ट्रांसपोर्टर. ओके, now there is this small note that when aggregate value of the consignment exceeds 50,000 then transporter shall pay. So ये basically transporter के लिए है कि अगर transporter के पास there are more so many consignments and the total value of the consignments is more than 50,000, then the transporter is required to generate e-way bill. Then coming on to the next slide, Anshul. Okay, so the earlier we discussed when there's movement by registered person. Now we'll discuss if there's movement by unregistered person. So again, there are two scenarios. एक वो खुद का vehicle use कर रहा है, and the other one is through the transporter. So in this case, जहाँ पे वो खुद का vehicle use कर रहा है, and the supply, if the supply is made to a registered person and the value of goods is more than 50,000, then that registered person is required to make the bill. जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि in case of inward supplies from an unregistered person, तो it becomes my duty to generate an e-way bill. So that is one case. And the other case is अगर वो transporter के through movement करा रहा है and the value is more, up to 50,000, then no e-way bill is required. And if it is more than 50,000, then e-way bill is required. So in this case, either he may generate the e-way bill or the transporter also generate the e-way bill, or the recipient of the goods, he may generate the e-way bill. Again, this is note that where the aggregate value of the consignment is more than 50,000, then the transporter is also required to generate the e-way bill. Also nahi, matlab wo he is required to make the e-way bill. Next slide, please. Okay, so consolidated e-way bill, it's like a kind of facility to the transporter. So it's a document containing details of many e-way bills. Okay, for there are multiple consignments. So for example, अगर कोई transporter है, उसके पास बहुत सारी consignments हैं and बहुत सारे consigners और consignees के हैं. So it will become difficult for him to carry so many e-way bills. So in that case, he has an option to make a consolidated e-way bill. So ऐसा नहीं होता है कि consolidated e-way bill अपने आप बनता है. For that also I have to make individual e-way bills first for all the consignments, and then उन सबका details मैं एक consolidated e-way bill में डाल दूंगी. So that becomes my consolidated e-way bill. Consolidated e-way bill की कोई validity नहीं होती है. So in that case, validity of single e-way bill is required to be kept in mind. Okay, I think I am clear with this. Okay, Shruti, would you like to add something till here? Yes, Shefali, although some points will be such which will be covered by you when you will be discussing the cases where generation of e-way bill is not required. Hopefully, it will be covered at the end by you. One thing I need to add is you explained that when goods are sent for job work, interstate movement, you have to like e-way bill generation is required whether the value is even less than 50,000, which was correct. I just need to add one more point here because this might create some confusion in some people. Rajasthan में क्या होता है? So e-way bill के state act, again GST के state acts और state rules भी होते हैं, as we all know. तो state अपनी मर्जी से in their own state कुछ exemptions दे सकती हैं if they deem fit. तो जो जॉब वर्क के लिए गुड्स का मूवमेंट होता है उसके केस में राजस्थान ने एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है कि अगर कोई प्रिंसिपल गुड्स भेज रहा है जॉब वर्कर को या जॉब वर्कर के यहाँ से दूसरे जॉब वर्कर को
for such movements, if that movement is happening within the state, अगर within Rajasthan 50 kilometers के अंदर अंदर कोई movement हो रहा है job work के लिए, तो even if the value exceeds 50,000, generation of e-way bill is not required. So this is a point which it is a kind of relaxation for the people who are sending goods for job work कि 50 किलोमीटर के अंदर आप job work के लिए माल भेज रहे हैं तो आपको ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, या फिर वहां से दूसरे जॉब वर्कर के पास जा रहे हैं उसके लिए भी ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है. So this is a relaxation, or I can say an exception to the general rule. Else in every case, if value exceeds 50,000, you have to generate e-वे bill. So this was one point I needed to add. The remaining ones, once we discuss the exemptions, general exemptions, then I'll add if required. Okay, so what you may continue. He just said is only an exception for Rajasthan. So while creating, you Yes. have to check the rules for that particular state. Make sure you do that, because Shruti ne jo abhi bataya, it is only for Rajasthan. I hope we're clear. Okay, next slide, please. Yes. Okay, so this is the action that we can take. So basically, अगर आपने कभी कोई ई-वे बिल बनाया है and after creating the ई-वे बिल, अगर आपको ये realize हुआ that the details entered, जो आपने उसमें details enter करी है वो गलत हो गई है, और goods का movement ही नहीं हो रहा है, या any kind of detail, bill to ship to गलत हो गया, और there are incorrect details in the e-way bill, then you have the option of cancelling the e-way bill within 24 hours. उसके बाद आप नहीं कर सकते हो. Now, how do we calculate these 24 hours? Suppose आज दिन में मैंने 1 बजे एक e-way bill बनाया है. So the validity is 1 day. That 24 hours वो कैसे count होगा कि कल midnight तक. I hope I'm clear. So that is one thing. And one more thing, you cannot cancel if verified in the transit. So that is, अगर आपका vehicle निकल चुका है and उसको निकले हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, then you cannot cancel it अगर कहीं भी किसी भी interception पे your e-way bill has been verified. आप उसको उसके बाद cancel नहीं कर सकते हो, then it is verified. So you do not really have the option of cancelling it. Then the recipient has the option of either accepting it or rejecting it. If he accepts it within 72 hours, that is 3 days, अगर वो accept कर लेता है और reject कर देता है, then it's okay. अगर वो नहीं करता है within 72 hours, then it is deemed accepted. Okay, I hope I'm clear with this. Next slide. Okay, so we'll come to validity now. So there are two categories, the over-dimensional cargoes and other than over-dimensional. So over-dimensional are those, the one you can see in the picture, they're really huge, बहुत बड़े होते हैं वो. Usually जो हमारे पास होते हैं, they're other than over-dimensional. Okay, so for less than 100 kilometers, the validity would be 1 day, and for every additional 100 kilometers and part thereof, it would be additional 1 day. So 90 kilometers पे मेरा 1 day रहेगा, 150 kilometers होते ही मेरा additional 1 day मुझे मिलता है, and that becomes 2 days. All right. For over-dimensional cargo, because they're huge and really heavy in sizes, the limit is a little different. It's for less than 20 kilometers, it's 1 day. For every additional 20 kilometers and part thereof, it is additional 1 day. Okay, so over-dimensional cargos के लिए extra validity मिल सकती है if you apply for. Okay, so this is one thing, but I would like to suggest something here that जब भी आपके goods move होते हैं and जो भी transporter होता है or the driver, you have to make sure that they cover the distance required within the appropriate time. That is, वो इतने slow नहीं हो सकते हैं कि वो हमारा validity ही expire हो जाए. I hope I'm clear with this. Next slide. Okay, this is really important.
This is the document and the devices which the person in charge of the conveyance is required to carry. So एक तो होता है e-way bill that we generate, the other either in the physical form or the electronically form. Electronic form bhi chalta hai, they accept that also. And the invoice, the supporting with it, that is either invoice or delivery challan or BOE or bill of supply. So I'll discuss these documents quickly. So tax invoice is required where there has been a supply. मतलब आपका sale हुआ है and then you've generated a tax invoice. तो आपके e-way bill के साथ tax invoice जाएगा and e-way bill में tax invoice की details ही जाएंगी. Please make sure it is, there's no difference in it, as in matlab the details are really correct, the date and the bill number and everything. Also the type that you've selected while making your e-way bill, that is also correct. मतलब आपने उसको as supply or other than supply or any other reason ऐसा select किया हुआ है. Then comes bill of supply in case of exempt supply. So where there is exempt supply, उस केस में आपको bill of supply बनाने की जरूरत है. I think somebody had written a question related to documents only in the chat box. If I am answering his questions. So bill of supply तब बनेगा when there is exempt supply. And then there is delivery challan. This is very important. So every time you move your goods without making a supply, that is, जब हमने earlier discuss किया था examples for other than supply, जिसमें job work था, इंटर ब्रांच मूवमेंट था या फिर फेयर के लिए, एग्जीबिशन के डिस्प्ले के लिए, और ये सब के लिए जब हम मूव कर रहे थे, देन द मूवमेंट इज टू बी सपोर्टेड विद अ डिलीवरी चालान. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन दोज केस वी डू नॉट मेक अ टैक्स इनवॉइस. इट इज ओनली बिकॉज वो हमारा सप्लाई नहीं है तो हम टैक्स इनवॉइस नहीं बनाएंगे. सो इन दोज केसेस वी मेक अ डिलीवरी चालान एज अ सपोर्टिंग, जो भी ड्राइवर है ऑफ द कन्वेंस इज रिक्वायर्ड टू कैरी विद हिम. Then comes BOE. So in case of import, अगर कोई माल import होके आ रहा है, then the driver has to carry bill of entry with him. मतलब it is extremely important to carry all these documents along with e-way bill and make sure the e-way bill में जो भी details हमने डाला है of these documents and the type of supply and the subtype of supply that we've selected while generating the e-way bill matches with the my real invoice or delivery challan or the document that is going along with the e-way bill. So for example, अगर मैंने एक e-way bill बनाया है जिसमें मेरा शिप टू डिटेल सपोज महाराष्ट्र था, नो नॉट महाराष्ट्र, इट वाज मुंबई, ठीक है, और मैंने गलती से उसमें एड्रेस एक ऐसी प्लेस का डाल दिया विच वाज अ लिटिल अर्लियर देन मुंबई. ओके, सो अगर इस ड्यूरेशन में अगर मेरी गाड़ी पकड़ी जाती है, देन दैट comes as a penalty to me. मतलब it may create a penalty to me because वहां पे the details are incorrect कि मेरी गाड़ी आगे तक जानी थी, मैंने पहले ही उसमें ship to पहले ही location का ship to details उसमें डाल दिया. तो you have to be really careful because even a clerical error would result into higher penalties because the penalties in case of e-way bills is really huge. Next slide. So blocking of e-way bills. So recently, as we all know, that अगर हमने हमारा compliance नहीं किया है for 2 consecutive periods, तो हमारे e-way bills generate होना block हो जाते हैं. For example, अगर मैंने March और April 2 महीने की consecutively 3Bs नहीं file करी हैं, then the portal would not allow me to generate e-way bills. So it is really important that you keep all your 3Bs in time so that at the time of generating your e-way bills, there is no problem with it because the last moment hassle would be really bad. Then for the taxpayer registered under composition scheme, CMP 08, that is the return form they have to fill. So अगर वो लोग ने for 2 consecutive quarters, because वो लोग को quarterly requirement है
to file their returns. So अगर वो लोग ने 2 consecutive returns file नहीं करी है for 2 consecutive quarters, then also they will not be able to generate e-way bills. So how do we fix this? हम लोग को simply अपनी वो दो जो भी pending टैक्स पीरियड है वो उनकी रिटर्न्स फिल करनी है, सो दैट हम लोग की ई-वे बिल का जो ब्लॉक हो रखा है जनरेशन वो अनब्लॉक हो जाए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सो this I just discussed कि unblock कैसे करना है. Unblock once you file your 3Bs or the CMP 08, that is composition taxpayers return. तो विद इन अ डे आपका generation unblock हो जाता है, and then after that you can do that. And if that also does not happen, then there is this option update block in search. If you go on the portal, if you can see in the picture, that picture is really small, but you may try it. Search and then update block status, that will help you. So that will unblock your status अगर वो within a day unblock नहीं होता है तो. Next slide. Okay, so a lot of us must be having confusions or questions for the cases where there is bill to and ship to transactions and bill from and ship from transactions. So I'll first discuss bill to ship to. I'll simply discuss it with an example. So usually bill to ship to में there are 3 parties. One, the supplier. Second, the recipient. And third, जिसको हमें actually मैंने माल deliver किया है. So in this case, ABC is the supplier of goods and XYZ is the recipient. Now XYZ जो कि buyer है मेरा, that orders ABC कि आप वो जो माल है you deliver it to PQR. Now since the ABC is the person who is making the movement of goods, then he is required to generate e-way bill. So while generating e-way bill, वो how is he going to enter the details? Bill to XYZ, that is recipient. वो bill recipient को बनाएगा क्योंकि उसने XYZ को ही अपना माल बेचा है, लेकिन उसने XYZ के कहने पे जो माल PQR को पहुंचाया है, that is ship to. So this is going to be like bill to XYZ, the recipient, and ship to PQR, that is the third party जिसको actually माल पहुंचाया गया है, and ABC is the supplier who is making the movement of goods and he is required to make the e-way bill. I hope I'm clear with this bill to ship to transaction. Then comes bill from ship from. So this is again, this requires 3 parties. So in this, ABC ने माल खरीदा from XYZ and subsequently sold it to PQR. While the goods are still with XYZ, ABC is making the movement of goods from XYZ to PQR. Okay. So XYZ ने, I'll explain it. This is a little confusing. ABC ने माल खरीदा XYZ से और खरीदते ही उसने PQR को बेच दिया, लेकिन माल अभी भी XYZ के पास ही है. Then ABC is making the movement. So in this case, XYZ से माल PQR तक पहुंचवाने के लिए, if the e-way bill is required to be made, that is going to be like bill from ABC and ship from XYZ. I hope I'm clear with this. Next slide. Shefali, I will like to add one point in the previous slide. You have taken one case which is correct, bill from ship from में 3 parties हो सकती हैं, but for the knowledge of all or for assuring the correct practice, जरूरी नहीं है कि 3 parties हो different तभी ये form of transaction होता है. एक general mistake जो होती है e-way bills में वो ये होती है कि अगर आप सेलर हैं और एक बायर है, 2 ही पार्टीज आपके ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन आप बिल बना रहे हैं आपकी एक्स लोकेशन से
और माल निकल रहा है आप ही की वाई लोकेशन से, जो कि मे बी आपकी फैक्ट्री के पास वाली बिल्डिंग में गोडाउन ही हो, लेकिन अगर आप एक्स लोकेशन से बिलिंग कर रहे हैं और आपका माल एक्स लोकेशन से ना निकल के किसी भी और लोकेशन से निकल रहा है, तो यू मस्ट इंश्योर कि शिप फ्रॉम या डिस्पैच फ्रॉम, जो शिफाली ने फील्ड बताया, उस फील्ड में आप एक्स वाला एड्रेस नहीं डाल के वाई वाला एड्रेस डालें। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि एक्स और वाई लोकेशन अगर बिल्कुल पास है तो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी दूर होता है या ऐसे डिस्टेंस पे होता है जहां पे उस डिस्टेंस के बीच में भी इंटरसेप्शन हो सकता है, तो अथॉरिटीज ये क्वेश्चन कर सकती है कि आपने गलत ईवे बिल बनाया है, क्योंकि मूवमेंट तो किसी और जगह से हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि मूवमेंट किसी और जगह से हो रहा है। तो सेम पार्टी का बिल फ्रॉम और शिप फ्रॉम होने के बाद भी एड्रेस ऑल्सो मैटर्स। तो आप ही की अगर दूसरे जगह से, दूसरे गोडाउन से या किसी और फैक्ट्री से माल निकल रहा हो, तो भी आपको शिप फ्रॉम में वो एड्रेस डालना है जहां से माल निकल रहा है, ना कि वो एड्रेस जहां से बिलिंग हो रही है। तो दिस इज वन पॉइंट टू फोकस और एड्रेस। यू मे कंटिन्यू। Okay. Yeah, thank you, Shruti. So this was another very good example for bill from shift from. I hope we're clear with this and your doubts are clear. So now we'll come to some other relevant points which does not really require detailed discussion but which are important. So the first is, अगर आप e-commerce operator या फिर courier agency के through अपना माल भिजवा रहे हैं, so in that case आपके पास ये ऑप्शन है दैट यू ऑथराइज जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है या फिर कुरियर एजेंसी, तो उनको आप ऑथराइज कर सकते हैं कि वो आप मतलब पार्ट ए में डिटेल्स फिल करने के लिए, ओके, सो दे कैन ऑल्सो जनरेट ई वेबल्स। और फिर पार्ट बी में एज रिक्वायर्ड अर्लियर ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स जाएंगी। ओके, सो द अनदर केस वुड बी, अगर आपने ट्रांसपोर्टर को गुड्स हैंड ओवर कर दिए हैं विदाउट जनरेटिंग ई वे बिल, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इंफॉर्मेशन जो भी है पार्ट ए वाला पोर्टल पे जो जाता है उसमें डिटेल्स फिल कर दीजिए, एंड द ई वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द ट्रांसपोर्टर। मतलब पार्ट बी में देन ट्रांसपोर्टर विल फिल इन द डिटेल्स एंड डिटेल्स मूव हो जाएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर अगर आपने गुड्स हैंड ओवर कर दिया है ट्रांसपोर्टर को विदाउट जनरेटिंग, मतलब आपके पास से माल चला गया है बट मूव नहीं हुआ है, इट्स विद द ट्रांसपोर्टर येट, ओके, देन ओके, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है कंसाइनर की प्लेस ऑफ बिजनेस से टू द प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर, ओके, एंड अगर ये जो डिस्टेंस है दोनों की प्लेस के बीच में, इफ इट इज लेस देन 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से कम है, एंड इट इज इन द सेम स्टेट, तो आपको पार्ट बी में ई वे बिल की, मतलब पार्ट बी में डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी ये नहीं है कि आपको पार्ट ए भी नहीं बनाना, बट आपको पार्ट बी में डिटेल्स फिल करने के लिए यू हैव द एग्जेम्पशन। ये तब है जब प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर और प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर, बेसिकली कंसाइनर और ट्रांसपोर्टर के बीच में माल मूव हो रहा है और जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर से कम है। सो आई होप आई एम क्लियर। पर इसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि आपको पार्ट ए नहीं बना, आप पार्ट ए बनाना है, आपको सिर्फ एग्जाम्पशन है पार्ट बी की डिटेल्स भरने से, दैट इज ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स, ओके। सो अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं कि ड्यूरिंग द मूवमेंट अगर रास्ते में कहीं पे भी कुछ भी हैपनिंग हो जाता है, दैट इज लाइक कैलामिटी या फिर एक्सीडेंट्स और कुछ भी ऐसा आ जाता है, बहुत तेज बारिश आ जाती है और एनीथिंग विच इज नॉट रियली ओकेजनल, मतलब रेगुलर, तो हमारे पास एज ए ट्रांसपोर्टर के पास ऑप्शन होता है टू एक्सटेंड वैलिडिटी। और वो वैलिडिटी कब से कब तक एक्सटेंड कर सकता है? सो वैलिडिटी जो मेरी एक्सपायर होने वाली है उसके विद इन 8 आवर्स मैं पोर्टल पे जाके अपनी वैलिडिटी एक्सटेंड कर सकती हूँ। वो हमारे पास ऑप्शन होता है इन केस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, बारिश, एक्सीडेंट्स, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में। नेक्स्ट स्लाइड। ओके,
So where the movement is by railways, yeah, airways, yeah, waterways, so e-way bill is required to be generated either by the supplier or the recipient, whoever is registered. मतलब that person has to be registered before or after the commencement of move. So अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से आपका गुड्स मूव करते हैं, तो इन दैट केस आपके पास थोड़ा सा लेवरेज है कि आप बाद में भी ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो. आइदर द सप्लायर, दैट इज जो सेलर है वो जनरेट कर सकता है, और द रेसिपेंट जो बायर है वो जनरेट कर सकता है. देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो रेलवेज है, सो रेलवेज आपको कभी भी आपके गुड्स नहीं देगा अनलेस यू फर्निश ई-वे बिल. मतलब आपको रेलवे से अपना माल, अपनी डिलीवरी लेने के लिए वो लोग को, रेलवेज को आपको ई-वे बिल देना जरूरी है, अदरवाइज वो लोग आपका माल नहीं छोड़ेंगे. सो प्लीज मेक श्योर दैट ई-वे बिल्स आर जनरेटेड. अगर पहले नहीं तो बाद में बन चुके हैं, बट दे आर इम्पोर्टेंट. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो रिसेंटली जो वाहन सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो और ई-वे-बिल portal, they've been integrated. So every time you enter a vehicle number, तो वो details fetch करता है from the transport department. So in case आपने कोई भी फर्जी या फिर गलत vehicle number डाल दिया है, then the portal will not let you to make an e-way bill. मतलब पोर्टल आपको अलाउ ही नहीं करेगा इन केस आपने कोई गलत या कोई फर्जी व्हीकल नंबर डाल दिया है, तो वो आपको ई-वे बिल जनरेट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो उस व्हीकल की डिटेल्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डेटाबेस से फेच नहीं कर पाएगा. सो आई होप आई एम क्लियर. मतलब द व्हीकल नंबर हैज टू बी करेक्ट, एकदम सही व्हीकल नंबर होना चाहिए जिससे वो गुड्स मूव हो रहे हैं. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आई वुड सजेस्ट कि जो भी ट्रांसपोर्टर या फिर आपके ड्राइवर्स होते हैं जो भी गुड्स मूव कर रहे हैं, वो लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर आपका गाड़ी एक बार कहीं पे भी ड्यूरिंग द मूवमेंट अगर किसी भी एक जगह पे वेरीफाई हो चुका है बाय एनी, मतलब बाय द ऑफिसर, देन उस सेम स्टेट में, ओके, उस सेम स्टेट में वो वापस वेरीफाई नहीं हो सकता है. आई होप आई एम क्लियर. आई रिपीट इट वंस अगेन कि अगर मेरा व्हीकल एक बार वेरीफाई हो चुका है, देन सेम स्टेट में हम लोग उसको वापस वेरीफाई, एज इन द प्रॉपर ऑफिसर उसको वापस वेरीफाई नहीं कर सकता है. दे डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू डू इट. सो इन दिस केस ये आपके ड्राइवर्स को पता होना चाहिए, सो दैट दे नो व्हाट टू डू नेक्स्ट. मतलब दे नो व्हाट आर देयर राइट्स, कि अगर एक बार व्हीकल वेरीफाई हो गया तो वापस नहीं होगा. बट द एक्सेप्शन टू इज अनलेस डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी इंफॉर्मेशन है कि हम, मतलब एज इन द मूवमेंट इज ड्यू टू एवेजन ऑफ टैक्स, मतलब उसमें कोई गड़बड़ है या फिर हम हमारा टैक्स चोरी कर रहे हैं या ऐसा कोई भी रीजन, एक वैलिड रीजन, सिर्फ उसके बेसिस पे वो लोग हमारी गाड़ी एक ही स्टेट में वापस रोक सकते हैं. बट देन ऑल्सो दे हैव टू provide information. matlab this has to come with a base. Okay, and this is another one more important point कि कोई भी ई-वे बिल except for the exceptions, अगर पार्ट बी नहीं है उसमें तो वो वैलिड नहीं है. मेरा एक ई-वे बिल वैलिड तभी होता है जब उसमें पार्ट ए भी है एंड पार्ट बी भी है. विदाउट पार्ट बी देयर इज द ई-वे बिल is not valid. वो हमारा valid ई-वे बिल बनता ही नहीं है. एक दो एक्सेप्शंस है as discussed earlier, जहाँ पे वो 50 किलोमीटर वाला डिफरेंस था, दैट कंसाइनर से ट्रांसपोर्टर की जगह पे मूव कर रहे हैं, 50 किलोमीटर का डिफरेंस से कम है तो पार्ट बी में डिटेल्स भरने की जरूरत है. वो एक एक्सेप्शन है, बट अदरवाइज पार्ट ए और पार्ट बी दोनों होना चाहिए, तभी हमारा ई-वे बिल इज वैलिड. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो कॉमन एरर्स जो which we've observed that people make are issuance of single e-way bill against multiple invoices. So ideally एक
इनवॉइस के अगेंस्ट एक ही ई-वे बिल इशू हो सकता है. फॉर एवरी सिंगल इनवॉइस देयर हैज टू बी ओनली वन. अगर मल्टीपल, सपोज एक कन्वेंस में देयर आर मल्टीपल कंसाइनमेंट्स और हर उसके अलग अलग इनवॉइसेस है, देन दैट मेनी ई-वे बिल्स आर रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड. मैं सबका ई-वे बिल एक साथ नहीं बना सकती हूँ. सो it is very important that one e-way bill is generated against only one invoice. I hope I'm clear. If the practice is being followed, I request you not to do it. Okay. Then furnishing vehicle numbers in an invalid format. Okay, so abhi humne discuss kiya ki transport department or e-way bill portal, they've now integrated. तो जो व्हीकल की डिटेल्स है वो हम ले सकते हैं. बट देन इन एडिशन टू दैट देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मेट विच जब आप पोर्टल पे डिटेल्स डालते भी होंगे तो एक साइड में एक छोटा सा पॉपअप आता है विच टेल्स यू कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए. सो इन दैट केस ऑल्सो अगर आपका डेटा मैच नहीं कर रहा है, सो मेक श्योर यूर यूजिंग द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द व्हीकल नंबर and also the correct vehicle number. I hope I'm clear. This is one general mistake that people make. Okay, so generation of e-way bill through incorrect IDs. Okay, ये वो लोग के लिए है जिनके पैन इंडिया they have multiple registrations. Okay, सपोज मेरा एक रजिस्ट्रेशन राजस्थान में है, एक यूपी में है, एक मध्य प्रदेश में है. आई हैव 3 registrations. नाउ मे बी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज या मुझे नहीं समझ रहा था कि बिल टू क्या है, शिप टू क्या है, या हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल. एन ई-वे बिल which was required, जो बनना चाहिए था राजस्थान से, because I have access to all the IDs, all the 3 IDs, तीनों स्टेट का IDs है मेरे पास. तो मैंने गलती से वो क्या किया, वो ई-वे बिल इंस्टेड ऑफ राजस्थान मैंने यूपी के आईडी से बना दिया, which is extremely wrong because इसमें responsible was somebody else to generate an e-way bill and somebody else created the e-way bill. So it is really important to analyze जब भी कोई movement होता है that who is required to make the e-way bill. E-way bill किसको बनाना है and कौन वो goods move करवा रहा है, that person is required to make e-way bill. So जहाँ पे there are more than one GST registrations, वहाँ पे this might be a common error. तो I would suggest कि ये एक चीज है जो हम हमारे दिमाग में रखें जब भी हम ई-वे बिल्स बना रहे हैं. ओके, फिर इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाइल जनरेटिंग, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आपने अपने बिल टू शिप टू में गलती कर दिया या फिर इनवॉइस का डिटेल्स या डिलीवरी चर्नल का डिटेल्स या सब टाइप, मतलब एनी एरर, कोई भी इवन ए क्लरिकल एरर जो आपने unintentionally गलती से हो गया हो in the e-way bill, that may cause you a really high penalty. उसकी वजह से आपको बहुत बड़ी penalty पे करनी पड़ सकती है because the proper officer may not listen to it कि bill to ship to क्यों गलत हुआ या whatever the reason was. तो उसके लिए it is very important कि हम पर्टिकुलरली इनवॉइस डिटेल्स जब हम हमारा ई-वे बिल बना रहे हैं, सो हम लोग वो एकदम करेक्ट डालें सो दैट हम लोग प्रोबेबिलिटी कम कर दे हमारे व्हीकल डिटेन होने की. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. Oh no, 1 second. A slide previous to this, I think I skipped 1 point there. Okay, this is for your internal records. So inability to maintain a record of e-way bill. So usually ऐसे हम लोगों के पास if we go on the portal, we have several options to generate e-way bill reports. मतलब मेरे inwards की, मेरे outwards की, generated by us, generated by others, there are so many options जिससे मैं वो reports download कर सकती हूँ. But we would suggest that your e-way bill numbers should be parallel to the purchases or the sales that you've made, so that in
future or in case of any kind of inquiry, you can track कि कौन सा माल कहाँ से निकल के कहाँ गया है, उसका ई-वे बिल और उसका इनवॉइस नंबर कौन सा था. तो वो सब जब पैरेलल चलते हैं तो it becomes easier for you to reconcile. So this is totally for your internal purpose that you maintain record of your e-way bills also ताकि आपको movement track हो सके. Okay, next point. Okay, now I will discuss the cases where e-way bill is not required to be generated. So the first comes the annexure to Rule 138.14, which includes like goods for personal consumption, household effects, jewelry, precious, semi-precious stones, and others. Then non-motorized vehicle. Okay, so in case मैं कुछ भी goods move कर रही हूँ with a non-motorized vehicle, for example, रिक्शा हो गया, जो अगर मैं रिक्शा के थ्रू मूव कर रही हूँ, then I am not required to generate e-way bill or any such other like bullock carts हो गया, और ये सारी गाड़ियां जो होती है जो एनिमल ड्रिवन होती है, अगर मैं उनके थ्रू अपना गुड्स मूव कर रही हूँ, हो सकती है उनकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा, पर इन दोज केसेस मुझे ई-वे बिल्स बनाने की जरूरत नहीं है. Then comes movement of alcoholic liquor for human consumption, petroleum crude, natural gas, aviation turbine, high speed diesel, etc. I think this is clear in itself कि हम लोग को ये सारे products में e-way bill बनाने की जरूरत नहीं है. Movement of goods caused by Ministry of Defense as a consigner or consignee. So जहाँ पे भी Ministry of Defense कोई भी movement of goods cause करती है, either as recipient or as consigner or consignee, in those cases also they have the exception कि वो लोग को e-way bills बनाने की जरूरत नहीं है. Goods transit cargo from or to Nepal or Bhutan. So what are transit cargos? तो basically suppose कोई एक कार्गो it is coming from some other country, इंडिया आया और इंडिया से अब वो नेपाल जाना है. So it is going through India, so that is like a transit cargo. So अगर कोई भी ऐसा transit cargo है जो कहीं और से आ रहा है या इंडिया होते हुए कहीं और जाना है, from these two countries, that is नेपाल या भूटान, अगर इन दोनों countries से कोई भी ट्रांसिट कार्गो आ रहा है या इन दोनों को जा रहा है, उस केस में भी हमें ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है. देन एलपीजी सिलेंडर्स, अगर वो अदर देन सप्लाई, मतलब खाली एलपीजी सिलेंडर्स अगर मूव हो रहे हैं फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, तो भी हमें ई-वे बिल्स बनाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, ओके, सो जो वेइंग के लिए, मतलब तुलने के लिए जो मूव करते हैं हम हमारे गुड्स को, दैट इज धर्म काटा जैसा वे ब्रिज तक, सो अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स, तो हमें ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है. एंड इफ इट इज अकम्पनीड बाय डिलीवरी चलान, सो ऐसे वे ब्रिजेस तक जाने के लिए विच इज विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, तब भी हमें ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है. देन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऐसे कोई स्टेट लोकल अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट करती है गुड्स बाय रेल, तो उस केस में ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है. देन सप्लाई ट्रीटेड एज नो सप्लाई, मतलब शेड्यूल 3 में ऐसे ऐसे items हैं which are neither treated as supply of goods nor as supply of services. Okay, so वो वाले जो केसेस हैं, उन केसेस में भी हमें ई-वे बिल बनाने का जरूरत नहीं है. लाइक सेल ऑफ लैंड हो गया, फ्यूनरल हो गया, एंड मोस्ट ऑफ देम आर सर्विसेज, तो उन केसेस में तो वैसे भी हमें बनाने की जरूरत नहीं है. बट इफ देयर आर एनी गुड्स केसेस, उसमें भी हमें बनाने की जरूरत नहीं है. ओके, एग्जेम्प्ट गुड्स में अगेन कोई जरूरत नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर पोर्ट या एयरपोर्ट या एयर कार्गो से कोई भी गुड्स मूव हो रहे हैं टू इनलैंड कंटेनर डिपो, तो उस डिस्टेंस के लिए, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के लिए हमें
ई वेबल बनाने के लिए जरूरत नहीं है, मतलब हमें एग्जाम्पशन मिला हुआ है कि हमको ई वेबल्स जो बनाने हैं वो पोर्ट तक बनाने हैं, उसके आगे के लिए हमें ई वेबल्स बनाने की जरूरत नहीं है. सो जो भी एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स में है, सो दे शुड नो दिस. एम्प्टी कार्गोज कंटेनर्स, ओके, अगर वापस खाली कार्गोज है तो भी ई वेबल्स की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट. ओके, नाउ विल कम टू, अगर हमारा माल निकला हुआ है एंड रास्ते में अगर कोई भी प्रॉपर ऑफिसर हमारा गाड़ी रुकवाता है, सो व्हाट ऑल कैन ही डू एंड व्हाट वी शुड नो. हमें पता होना चाहिए कि उसके राइट्स क्या है और हमारे राइट्स क्या है, सो दैट कोई भी हैरेसमेंट नहीं हो. ओके, सो तो प्रॉपर ऑफिसर को ऑथराइज करता है कमिश्नर कोई भी व्हीकल फिजिकली वेरीफाई करने के लिए, और along with the documents, आपका ई-वे बिल, आपका डॉक्यूमेंट. सो दिस इज वेयर, जब आपको पता होना चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, गुड्स क्या हैं, एंड एवरीथिंग यू मस्ट बी नोइंग इट, बिकॉज वो ही इज गोइंग टू इंटरोगेट अ फ्यू क्वेश्चंस. तो in this case also the driver should know majorly. तो this is where जहां आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट है कि वो आपका ई वेबल चेक कर सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है, एंड द फिजिकली आपका कन्वेंस चेक कर सकता है. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो अगर जब गुड्स इन ट्रांजिट है और किसी प्रॉपर ऑफिसर ने आपका गाड़ी रोका और उसको इंस्पेक्ट किया, देन उसके ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है दैट व्हाट ही हैज टू डू. तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो उसने आपकी गाड़ी इंस्पेक्ट करी है उसकी एक समरी रिपोर्ट पोर्टल पे अपलोड करनी होती है. दैट इज पार्ट ए ऑफ ई-वे-बिल 3. इफ यू कैन सी इन द राइट, वो लिखा हुआ है. सो उसको विद इन 24 आवर्स उसकी एक समरी रिपोर्ट जनरेट करके पोर्टल पे अपलोड करनी होती है, एंड ऑल्सो ही हैज टू सबमिट अ फाइनल रिपोर्ट. सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी आपका व्हीकल इंस्पेक्ट होता है ड्यूरिंग द ट्रांजिट, यू शुड नो दीज थिंग्स कि प्रॉपर ऑफिसर की भी क्या ड्यूटीज है अगर उसने आपका व्हीकल इंस्पेक्ट किया है तो. एंड विद इन 3 days उसको एक फाइनल रिपोर्ट इन पार्ट बी अपलोड करनी पड़ती है. दैट इज हिज ड्यूटीज. ओके, सो तो ये जो 3 दिन का पीरियड है उसके लिए एक्सटेंशन है प्रॉपर ऑफिसर के पास अगर कमिश्नर अलाउ कर दे. एंड अगेन आपको वो चीज फिर से ध्यान में रखनी है कि आपका एक बार अगर गाड़ी इंस्पेक्ट हो गई तो उस स्टेट में आपकी गाड़ी वापस इंस्पेक्ट करने का राइट उनके पास नहीं है जब तक उनके पास ये इंफॉर्मेशन ना हो कि आप टैक्स चोरी कर रहे हो और एनीथिंग अनड्यू यू ट्राइंग टू डू. ओनली इन दैट केस दे कैन इंस्पेक्ट योर गाड़ी वंस अगेन. अदरवाइज वो लोग के पास अथॉरिटी नहीं है कि आपका एक गाड़ी सेम स्टेट में वापस चेक कर सके. अगर स्टेट चेंज होता है, yes, the other state can do it, but not the same state. Next. Okay, so this is very huge. The the penalty for non-compliance of Section 68 under Section 68 is really high. मतलब ई-वे बिल में के रूल्स में अगर आपने कुछ भी comply नहीं किया है, if there is any kind of non-compliance, then the penalty would be really huge. But before coming to the penalty, Shuchi, if you want to add something. No, you cover this first, then I'll add some points. Okay, sure. So under Section 129, there are 2 cases, owner एंड अदर देन ओनर. सो अगर आपका कहीं पे भी गाड़ी पकड़ा जाता है एंड इट टर्न्स आउट कि आपकी डिटेल्स इनकरेक्ट है और कुछ भी नॉन कंप्लायंस रहा है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द पेनल्टी. पेनल्टी क्या है? सो अगर एग्जेम्प्ट गुड्स है तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स है, और 25,000, दोनों में से जो भी कम हो.
और अगर नॉन एग्जेम्प्ट गुड्स है तो इट्स क्लियरली 100% इक्वल टू टैक्स प्लस टैक्स। मतलब आपसे टैक्स तो लिया ही जाएगा, उतना ही मतलब टैक्स का ही 100% आपकी पेनल्टी बनती है। सो दैट इज a huge amount. In cases where the consignment value is really high, the tax would be high and the penalty would be higher. So in that case you have to be really careful कि जो एटलीस्ट ऑन क्लरिकल पार्ट आपके ईवे बिल्स में मिस्टेक ना हो, या फिर रीजंस विच आर यू नो अवॉइडेबल, उसकी वजह से इतना ह्यूज पेनल्टी हमें पे ना करना पड़े। ऑल्सो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा फॉर द टैक्स अमाउंट, फॉर दिस टैक्स अमाउंट आप इसके लिए आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। सो जस्ट इन केस आप कर चुके हैं या कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट डू इट एंड रिवर्स इट। देन कमिंग टू अदर देन ओनर, अगर आपको एग्जेम्प्ट गुड्स छुड़वाने हैं अपने, then the penalty would be 5% of the value of goods or 25,000 whichever is less. और नॉन एग्जेम्प्ट के लिए it is tax plus penalty equal to 50%, मतलब टैक्स का 50% पेनल्टी है और टैक्स, मतलब इतना तो आपको देना ही देना है। सो अगेन इसमें हमें एज कंसाइनर हमें मतलब जो भी गुड्स छुड़वाएगा उससे ये पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसे गुड्स जो डिटेन हो गए हैं वो डिटेन विदाउट सर्विंग ऑर्डर नहीं हो सकते हैं। आपको MOV 6 में ऑर्डर मिलना चाहिए फॉर डिटेनिंग ऑफ गुड्स, मतलब बिना ऑर्डर के आपके गुड्स डिटेन नहीं हो सकते हैं। PO shall issue a notice specifying the tax. Okay, PO proper officer को एक notice issue करना पड़ेगा for specifying the tax, जो tax pay किया है and the penalty in GST MOV 6, in form MOV 6, ये उसको देना पड़ेगा। These are a few things which you should know, and in case अगर आप इनमें से किसी का भी ITC claim कर रहे हैं, please do not claim it. Okay, Shuchi? On this very slide, I need to point out one thing, Shifali. We will also do it in the presentation before sharing. So, in the case of non-exempt goods, मतलब जहाँ पे goods taxable है, exempt नहीं है, उसके केस में जैसा आपने समझाया, दो केसेस हैं। अगर ओनर आगे आके पेमेंट करता है और प्रोसीडिंग्स कराता है तो जो एप्लीकेबल टैक्स है और साथ में टैक्स जितना 100% पेनल्टी उसको देना होता है टू गेट हिज गुड्स रिलीज्ड। और दूसरे केस में जहां ओनर सामने नहीं आता है और गुड्स टैक्सेबल हैं तो वहां एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी इक्वल टू 50%। सो द डिफरेंस इज जहां पे ओनर सामने आता है वहां टैक्स का जितना, मतलब टैक्स का 100% पेनल्टी है, लेकिन अगर ओनर सामने नहीं आता है तो वैल्यू ऑफ गुड्स का 50% पेनल्टी है। सो वील राइट हियर 50% ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स। तो ये सजेशन भी है ये समझाने के साथ कि अगर आपका माल कहीं भी रास्ते में इंटरसेप्ट होता है और आप सामने आते हैं या आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं सामने बीइंग एन ओनर कि हाँ हमसे ही गलती हुई, या जो भी आप प्रोसीडिंग कराना चाहते हैं एनी विच वे, अगर आप सामने आते हैं बीइंग एन ओनर तो आपका पेनल्टी टैक्स जितना लगता है, मतलब टैक्स से ऊपर का पेनल्टी नहीं लग सकता, 100% ऑफ टैक्स जितना पेनल्टी लगेगा। और अगर आप बीइंग एन ओनर सामने नहीं आते हैं और आपकी गाड़ी कोई पकड़ लेता है और वो आपके ट्रांसपोर्टर को बोलता है हमारी ओनर से बात करो और ओनर सामने नहीं आता है, तो फिर ऐसे केस में अथॉरिटीज उस ट्रांसपोर्टर से या जो भी पर्सन अवेलेबल होता है उससे माल की वैल्यू का 50% तक पेनल्टी मांग सकती है, विच कैन बी वेरी ह्यूज एज कंपेयर टू द टैक्स वैल्यू। तो इट्स सजेस्टेड कि जब भी ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स हो तो यू कम फॉरवर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी। दैट इज वन पॉइंट आई नीड टू ऐड यू। Okay, thank you, Shruti. So we'll go on to the next slide. Okay, so this is one thing. I have covered most of these points in my earlier slides, but then also you may have your own guidelines. आपके खुद guidelines जैसा और checklist जैसा बना सकते हैं for the instructions जो आपको देने हैं to the person in charge of the conveyance. अगर driver या मतलब ड्राइवर को of the vehicle आप उनको ये instructions दे सकते हैं कि at least you know this might reduce the chances of confiscation or penalty. So one very important, he's required to carry e-way bill
or consolidated e-way bill along with invoice, delivery चालान, bill of supply, bill of entry, जो भी e-way bill है plus उसकी document entries. Also there should be a check at the last point that the e-way bill and the delivery chalan they match with each other, that the details are correct in e-way bill. And then since the validity is only 100 kilometers per day, so the driver shall cover the required distance. Matlab, it's only the driver who can cover that distance in the prescribed time. So make sure that the driver covers that distance in 1 day. मतलब 100 kilometers per day वो cover कर ले. Then okay, this is very important कि driver को ये पता होना चाहिए that अगर उसको for more than 30 minutes, आधे घंटे से ज्यादा किसी भी इंटरसेप्शन पे रोका जाता है unnecessarily, that is मतलब उसे पता है कि सब सही है, एवरीथिंग इज ओके इन द ई-वे बिल, इनवॉइसेस में भी सब सही है एंड माल भी मेरा सही, एज इन कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नथिंग टू हाइड. सो इन दैट केस उसको अगर किसी भी इंटरसेप्शन पे 30 मिनट दैट इज आधे घंटे से ज्यादा रोका जाता है, तो वो उसके पास राइट है ट्रांसपोर्टर के पास कि वो ग्रीवेंस अपलोड कर दे ऑन द पोर्टल इन ई-वे बिल फॉर. I hope I am clear with this. And being consignee, consigner और transporter, ये एक benefit है आपके पास जो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहीं पे भी किसी भी interception पे आधे घंटे के से ज़्यादा unnecessarily नहीं रोका जा सकता है. Okay. Then अगेन उसको ये भी पता होना चाहिए आपके ड्राइवर को कि आपका एक स्टेट में एक बार से ज्यादा नहीं रोका जा सकता है. और दिस इज अ सजेशन दैट यू मे टेक एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर. ट्रांसपोर्टर से एक अंडरटेकिंग ले सकते हैं दैट इन केस ऑफ डिले इन द ट्रांजिट, अगर कोई भी डिले होता है देन ही वुड बी लायबल. मतलब अगर वैलिडिटी जैसा कुछ एक्सपायर हो जाता है देन he would be liable for that expiring of validity or for that delay in the time. Okay. And also this is very important. Usually kahin bhi interception pe further inspection तभी होगा when the proper officer को अगर doubt होता है, then also he is going to completely inspect your vehicle and everything. तो the driver should be prepared for a few common questions. यहाँ पे मैंने बहुत कम examples दिए, but there can be more as per the practical situation आप लोग face करते होंगे. that there are a few questions जो proper officer पूछेगा ही पूछेगा at any interception. तो आपके drivers prepared होने चाहिए to answer those questions, because अगर उन questions में the proper officer को doubt हुआ, then he'll go on to the next level. So to avoid that, you can simply prepare your drivers or suggest them, instruct them कि to be prepared for these questions. जैसे माल कहाँ आ रहा है, कहाँ जाएगा, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाएगा, आप क्या goods लेके जा रहे हो, and questions like those. So I hope I'm clear with this. And with this I stop here. And Shuchi, if you want to add something. Yes, Shivani, you covered it very well though. I'll just add here, in addition to being making the person in charge of conveyance prepared for the questions, one more thing of preparedness is required in this interception process. अगर आपका माल कहीं पे भी पकड़ा जाता है, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टर का बंदा और द पर्सन इन चार्ज ऑफ व्हीकल वो आप ही को इन्फॉर्म करेगा कि आपकी गाड़ी पकड़ ली है या आपका माल पकड़ लिया है. वो आपको ये भी बताएगा कि प्रॉपर ऑफिसर एक जनरल एलिगेशन जो भी आप पे लगा रहा है कि माल गलत जगह से आया है, ई-वे बिल में ये गलती है, एक कॉज बताएगा जिसकी वजह से उसको लगता है कि ये मूवमेंट गलत हो रहा है या ये ई-वे बिल गलत है और मैं टैक्स पे पेनल्टी लगाऊंगा या फिर आपसे कलेक्शन करूंगा. तो जो भी वो बता रहा है, एंड इफ योर केस इज जेन्युइन, जो ऑफिसर गलती निकाल रहा है वो या तो वो गलती है नहीं आपके ई-वे बिल में या फिर कोई जेन्युइन एरर हुआ है जो आपको भी अभी पता चला है. तो ऑलवेज मेक श्योर कि प्रॉपर ऑफिसर के पूछने पे, जब उसने ड्राइवर से ये बातें पूछी है या फर्स्ट टाइम आपको कम्युनिकेशन के लिए बुलाया है,
तो आप उसको एक रिटर्न रिप्लाई जरूर दें कि हाँ, आपके पार्ट पे कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं था और कोई ऐसी गलती नहीं थी जो आपने जानबूझ के टैक्स चोरी करने के लिए करी, और अपनी गलती की जेन्युइननेस को वहां समझाइए कि ये गलती हमसे इस रीजन की वजह से हो गई, मे बी एक टाइपोग्राफिकल एरर हो गया या फिर हमसे वो गलती से डॉक्यूमेंट दूसरा साथ में चला गया, ऐसी गलतियां जो जेन्युइनली आपको भी नहीं पता था ऐसा हो गया, वो अभी ऑब्जर्व हुई है, but you should always bring that on record in the first communication with the proper officer, जिससे आप अपना बोनाफाइड बिलीफ थ्रू आउट द प्रोसीडिंग्स आगे लेवल तक प्रूव कर सके कि हमारी कोई गलती नहीं थी, और हमने डे 1 से प्रॉपर ऑफिसर को ये समझाने की कोशिश की है कि हमारा ट्रांजैक्शन और मूवमेंट बिल्कुल जेन्युइन था, बट प्रॉपर ऑफिसर डिडंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो ये जो रिटर्न में पहला रिप्लाई देने वाली बात है, ये जरूर होनी चाहिए। मे बी ऐसा हो कुछ केसेस में कि आप अपने कंसल्टेंट से इमिडिएटली कांटेक्ट ना एस्टेब्लिश कर पाए या आपको फर्स्ट पॉइंट पे कोई टेक्निकल हेल्प ना मिले, बट ये जरूर करना है कि एक सिंपल भाषा में अपनी जेन्युइननेस प्रूव करने के लिए एक लेटर जरूर देना है प्रॉपर ऑफिसर को जिसने आपकी गाड़ी पकड़ी है। दैट हेल्प्स इन फर्दर लिटिगेशन इफ योर केस इज जेन्युइन। So this is one step I'll need to add here. More or less, we have covered it very well. If anybody is interested to ask any questions, we'll take the questions, the ones which are there in the chat box first, Shefali, and then if someone is interested to ask it here by unmuting them as well, they can do so. So, are you taking these questions? Yeah, I will take them. So one more thing I would like to add is there is an option on e-waybill portal to generate the list of e-way bills that are about to expire. So you can simply download it for your own reference and keep a track of the vehicles moving, और वो लोग का कब expiry किसका हो रहा है and या होने वाला है वो आप track कर सकते हैं and avoid any kind of hustle. Okay, so coming to questions, Puran sir ने पूछा है, can you please confirm what is transport document number? I think he is asking about bill T. Yes. Yes, sir, ये bill T का number होता है. I hope you're clear with this. Second question from Azad sir is, a recipient is registered in GSTN after 2 days. If becomes unregistered, then how we can generate e-waybill? Recipient. आप सिंपली सर बिल टू शिप टू मतलब एज एन उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं उसके, सिंस ही इज द रेसिपिएंट और ई-वे बिल आप बना रहे हैं तो आई डोंट थिंक उससे कुछ फर्क पड़ना चाहिए। एम आई राइट शुचि? If he is on the call, सर आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज जो क्वेश्चन हम समझ पा रहे हैं। Yes. Yes, can I ask? Yeah, sure, sir. Yes. Yeah, then suppose I'm first of all मैंने जयपुर से माल बेचा है हैदराबाद को जी। ओके, और मेरा माल जो सप्लाई हुआ है जिससे मैं माल परचेज करता हूँ वो है पुणे के अंदर। तो मैंने इसके केस में बिल टू शिप टू के केस में हैदराबाद से माल पुणे से माल डायरेक्टली हैदराबाद डिलीवर हुआ है। हाँ जी। तो उस केस में जो पुणे वाली पार्टी है जिसमें मैं माल परचेज करता हूँ उसने तो बिल मेरे नाम पे बना के नहीं ई-वे बिल में शिप टू हैदराबाद पार्टी को दिखा दिया। करेक्ट। बट हैदराबाद वाली पार्टी बोल रही है कि भाई मुझे ई-वे बिल आपके थ्रू भी चाहिए जो मुझे जयपुर से मैंने उसको बिल किया है जी। तो उस केस में जो मैंने जयपुर से बिल हैदराबाद वाली पार्टी को किया तो उस केस में ई-वे बिल कंपलसरी है या नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। जो आप कह रहे हैं ये जो 2 लेग्स ऑफ ट्रांजैक्शन है कि बिलिंग आपने किया आपके कस्टमर को लेकिन माल आपके यहाँ से नहीं जाके पुणे से हैदराबाद गया है, इसके लिए डिपार्टमेंट ने क्लियर एक सर्कुलर निकाल रखा है कि
ऑल्दो यहाँ पे 2 सेल है, बट क्योंकि मूवमेंट एक ही है तो ईवे बिल एक ही बनने की जरूरत है। और जो आप बता रहे हैं कि पुणे वाली पार्टी ने आपको बिलिंग करके और शिप टू हैदराबाद किया और उसी पे उसने ईवे बिल बनाया, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट प्रैक्टिस और वो ही होने की जरूरत है। आपको कोई ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी पुणे वाली हैदराबाद वाली पार्टी को समझाइए कि इस केस में वैसे ही बनेगा जैसे आपने बनवाया है। इस केस में मतलब जो ईवे बिल मुझे अगर देना पड़े तो मैं बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम में दे सकता हूँ क्या? हाँ सर दे सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट नॉट in that मूवमेंट एक ही बार हुआ है, exactly 2 ईवे बिल्स नहीं बनने चाहिए। But if party is continue forcing me to generate ईवे बिल, पार्टीज लाइक फोर्सिंग यू टू, देन यू कैन डू दिस कि आप बिल क्या bill from ship from यस, सो यू कैन डू वन थिंग, आप अपने लोकेशन से बिल फ्रॉम करके और डिस्पैच फ्रॉम पुणे से करके एक ईवे बिल बना दीजिए और आप साथ में वो कॉपी ऑफ ईवे बिल लगाइए जहां पुणे वाले ने ईवे बिल बनाया है, तो वो आप कॉपी साथ में लगा के दीजिए। हाँ 2 ईवे बिल सेम टाइम पे अटैच कर रखे। देन इफ फर्स्ट ईवे बिल जनरेटेड इन सपोज करो 1 जुलाई एंड सेकंड ईवे बिल फ्रॉम एंड शिप फ्रॉम वाला आज जनरेट करता हूँ तो कोई इशू आएगा उस केस में? नहीं नहीं सर, आपको दोनों ईवे बिल बनाने तो माल के मूवमेंट से पहले ही पड़ेंगे। पहले है, अब मूव होने के बाद नहीं सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। ओके, do we have more questions? अगर कोई भी क्वेश्चन चैट बॉक्स में नहीं लिख के यहाँ पे पूछना चाहते हैं बोल के, यू कैन डू सो, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन, वी विल आंसर इट। गुप्ता सर, बेसिक एग्जेम्पशन एज टू वैल्यू। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एक गुड्स का मूवमेंट होता है अदर देन सप्लाई, हाँ जी, नाइदर फॉर वर्क नॉर फॉर सप्लाई, उसके केस में कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है क्या? सर अगेन 50,000 की है, अगर 50,000 हाँ बताएं। If the movement of goods is neither for supply nor job work, it is other than supply. हाँ तो सर अदर देन सप्लाई आते ही मतलब वो ही हो जाएगा। तो अगर 50,000 से ज्यादा, सॉरी सर, तो उसमें कोई बेसिक एग्जम्पशन है क्या? अगर if the value is less than 50,000 then it is required to make the ईवे बिल? नो, अगर 50,000 से कम है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, 50,000 से ज्यादा है तो बनाने की जरूरत है। अच्छा, एक जगह आपने लिखा था कि एग्जेम्प्टेड के केस में ईवे बिल बनाने की जरूरत, एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है जी। दूसरी तरफ आप पेनल्टीज के प्रोविजंस में बता रहे हैं कि अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो वहाँ पे 2% और 25,000 की पेनल्टी लगेगी। दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली? सर डिफरेंस ये है कि जो सेक्शन 129 है वो सिर्फ ईवे बिल की नॉन कंप्लायंस के लिए नहीं है, वो एक सेक्शन 68 है जहां पे कोई भी डॉक्यूमेंट कैरी करने में अगर आप गलती करते हैं जो कि लॉ में कैरी करना जरूरी है तो वो पेनल्टीज लगती हैं। तो अगर आप बिल ऑफ सप्लाई, हाँ जी, दैट इज फॉर द डॉक्यूमेंट्स। यस सर, सो एनी डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड, तो ईवे बिल नहीं भी बनाना, लेकिन अगर एक बिल ऑफ सप्लाई के बेसिस पे मूवमेंट करना जरूरी है और आपने वो बिल ऑफ सप्लाई नहीं बनाया और वो माल पकड़ा जाता है तो आपसे वो पेनल्टी चार्ज तो पेनल्टी लगेगी। हाँ जी, यस सर, यू मे अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू सो। Yeah, I want to ask something. यस, Hello. यस सर प्लीज। हाँ जी सर। As I am a transporter and someone contact to me for transporting a machine for a job work, then is it compulsory to generate ईवे बिल? सर एक बार फिर से। I repeat, हाँ जी, मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ और एक पार्टी है सर्विस प्रोवाइडर है लाइक जेसीबी मशीन, जेसीबी मशीन ऑन जयपुर बेस्ड and I have to transport JCB machine from Jaipur to Udaipur for a job work, yeah, like road work, anything.
then is it compulsory or हाँ. any requirement to generate e-way bill for transporting the machinery part? सर इस केस में आप तो एज ट्रांसपोर्टर हैं, मतलब जो Yes. मूवमेंट करा रहा है दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू जनरेट द ई-वे। तो जो मशीन या जो भी आप बोल रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो उनका मतलब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू जनरेट ई-वे, वो लोग आप तो e-way bill किस चीज का जनरेट करेंगे, इस अमाउंट का या फिर मशीनरी का? I want to ask that. नो सर, Machinery दिस का इज sir. ओनली फॉर गुड्स मशीन। नहीं, I want to ask that मशीनरी जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो केवल एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए जा रही है, नॉट फॉर सेल। वहाँ पे जो भी जॉब पर कलेक्ट किया गया है उसको ठीक करने का, वो कंप्लीट करके वापस आएगी कुछ दिन बाद। तो डिलीवरी चलान के बेसिस पे वो मशीन मूव हो सकती है, या मशीनरी को मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ मैं, तो उस केस में तो ई-वे बिल जरूरत होता है या नहीं है? शिफाली, I'll explain what he's trying to ask. सर, हम आपका क्वेश्चन समझ गए हैं कि आप जेसीबी का बीइंग अ ट्रांसपोर्टर, आप एक जेसीबी का मूवमेंट करा रहे हैं और वो जेसीबी का मूवमेंट सप्लाई के लिए नहीं हो रहा, वो जेसीबी ठीक होने जा रही है लेट्स से, या किसी भी काम के लिए जा रही है जो जॉब वर्क उस पे होना है, तो ऑब्वियसली जॉब वर्क। हाँ जी, नॉट फॉर जॉब वर्क, आई एम आस्किंग दैट उदयपुर में रोड का काम चल रहा है, 4 दिन पहले बना, आज बना रहा हूँ तो ब्लॉक दिखा रहा है, मतलब अनरजिस्टर्ड हो गया, उसने रजिस्ट्रेशन लेटर फाइल नहीं की। एक क्या सेकंड करना सर। हेलो, हाँ जी सर, अब बोलिए आप। या मैं कह रहा हूँ कि जो जेसीबी मशीन ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ मैं हाँ फॉर द जी। पर्पज ऑफ रोड वर्क, अगर सामने For the सपोज उदयपुर में कोई कंस्ट्रक्टर है, उसको जेसीबी मशीन की जरूरत है रोड वर्क करने के लिए, हाँ, तो हाँ जी। मेरे यहाँ पर जयपुर बेस एक जेसीबी सप्लायर है, वो अपने जेसीबी को सप्लाई करना चाहता है फॉर वर्क कंप्लीशन और उदयपुर वर्क। अच्छा, हायर पे, एक तरीके से वो हायर पे जेसीबी मंगवा रहे हैं अपना काम करने के लिए, राइट? Exactly. या हाँ, तो सर जो जेसीबी की वैल्यू है, डिलीवरी चालान भी उस पे बनेगा और ई-वे बिल भी उस पे बनेगा, चार्जेस वाली वैल्यू पे नहीं बनेगा, यही आपका सवाल है? या मतलब फॉर व्हिच अमाउंट वी विल जनरेट ई-वे बिल, जेसीबी की एस्टिमेटेड वैल्यू पे। बट इन दैट केस जेसीबी अगर एस्टिमेटेड वैल्यू दिखाते तो वो सेल बिल नहीं काउंट होगा या फिर सर्विस अमाउंट काउंट होगा? नहीं सर, ऑल्दो जो जेसीबी जाएगी वो क्योंकि सेल नहीं हो रही है तो वो सेल बिल पे नहीं जाएगी, वो सर्विस के बिल पे जाएगी, क्योंकि वो सर्विस के लिए जा रही, वी अग्री, लेकिन साथ में क्योंकि जेसीबी इन इटसेल्फ एक गुड्स है और मूवमेंट सर्विस का नहीं हो रहा, गुड्स का हो रहा है, तो साथ में एक डिलीवरी चालान जाएगा और वैल्यू उसमें एस्टिमेटेड, जेसीबी की एस्टिमेटेड वैल्यू लिखी होगी और ई-वे बिल उसी का बनेगा। तो उस केस में जो ई-वे बिल जनरेट करते हैं अपन, तो उसमें एज ए इनवॉइस जनरेट करना है या फिर एज ए डिलीवरी चालान? डिलीवरी चालान पे जो कि जेसीबी की वैल्यू का बनेगा। ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, ओके, थैंक यू। Okay, there's one more question. यस, एक्सटेंशन वाला हो गया। ओके, घनश्याम सर ने पूछा है कि गुड्स सेंड फ्रॉम रिक्शा टू कस्टमर्स फॉर मोर देन वैल्यू ऑफ 50,000, सर ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक नॉन मोटराइज्ड व्हीकल है। रिक्शा से मतलब मेरा साइकिल रिक्शा से मतलब है, तो अगर उससे मूवमेंट हो रहा है तो ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। Then the next question is, can you please confirm that if I am sending a machine for repair work from Jaipur to Delhi, what value E-way bill will be generated? ये एक इंटर मूवमेंट है और आप अपनी मशीन सही होने के लिए भेज रहे हैं, जॉब वर्क, so in that case आपको ई-वे बिल बनाना जो है irrespective of the value, मतलब अगर 50,000 से कम की वैल्यू पे वो मशीन मूव हो रही है तभी भी आपको ई-वे बिल बनाने की जरूरत है। His question is कि ई-वे बिल का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो ई-वे बिल का वैल्यू वो होना चाहिए जो मशीन आपकी जा रही है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू। ओके, हेलो शुचि मैम। हेलो, यस भरत सर। या मैम एक्चुअली हम लोग एक्चुअली कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम करते हैं मैम, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आता है मैम। सपोज मैम कोई कॉन्ट्रैक्टर है, एक रेसिपिएंट है जिसका कि ई-वे बिल मैं आज बना रहा हूँ, लेकिन आफ्टर 3 days उसका जीएसटीएन ब्लॉक दिखाता है, तो मैम ऐसे केसेस में मैम हम लोग ई-वे बिल कैसे बना सकते हैं मैम? नहीं सर, आफ्टर 3 days उसका जीएसटीएन ब्लॉक दिखाता है, मतलब जिस दिन आप ई-वे बिल बना रहे हैं उस दिन उसका जीएसटीएन वैलिड है, राइट? बराबर है मैम, यस। तो फिर 3 days बाद आपको कोई नया ट्रांजैक्शन करना है?
जी मैडम, नया ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मैं नया ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो शायद से उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, शायद से देयर में भी तो केस, शायद से फाइल नहीं किया, जो कुछ भी। हाँ जी। तो ऐसे केसेस में मैम हम लोग कैसे ईवेबल बना सकते हैं मैम? तो आप ईवेबल नहीं बना सकते सर। वो जो ये जो चीज ब्लॉकिंग वाली चीज आई है, ये इसीलिए आई है ताकि गवर्नमेंट रेगुलेट कर पाए कि जो लोग रिटर्न्स नहीं भर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नॉन कंप्लायंट है, और उन पे ईवेबल बनाने की रोक सरकार ने जानकर लगाई है। तो आप उस पे ईवेबल नहीं बना सकते। मतलब ये गवर्नमेंट ने इंटेंशनली बंद किया है। उसी का ईवेबल पोर्टल ब्लॉक होता है या जीएसटीएन ब्लॉक होता है जिसने कंप्लायंस नहीं करी हो, तो आप उस पे ईवेबल नहीं बना सकते। ओके मैम। आपको उसे बोलना पड़ेगा कि वो कंप्लायंस करे और अपना रजिस्ट्रेशन रिस्टोर करवाए। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। Anyone else? नो थैंक्स, थैंक यू मैम, बंद करो। Any other questions? I Yeah, there are no more questions. So just in case, अगर आपके पास अभी भी questions हैं, you may always write to us. We will reply. Also, you may call us, so we'll help you with that. So as of now, I think we're done. Go to you or Madhukar. So if there are no questions, then we can call off Shifali. Okay. All right. Thank you, everybody. We're signing off. Thank you, everyone. आर के डाइंग की है।